class and this is your biology class. Students, today we will continue with the chapter 9, food production. And today we are going to start the new unit, that is unit 3rd, horticulture. Unit 3rd, horticulture. Students, what is horticulture? Actually, the word horticulture is made up of two words, that is hortus plus culture. ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है hortus. The meaning of the hortus is the garden and the meaning of the culture is the cultivation. According to this, the horticulture is actually a branch of agriculture, or we can say that it is a branch of science of growing fruits, vegetables and ornamental plants, that is known as horticulture. Students, हॉर्टिकल्चर आपको पता है जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स को ग्रो कराने के लिए जो प्रैक्टिस है, दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. और यहाँ पर कई तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ग्रो कराए जाते हैं एक लार्ज स्केल में अपनी कंट्री में. जैसे कि अब कंट्री में कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो कराई जाती है, दैट इज नोन एज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, अनियन, स्पिनच, लेडी फिंगर, रेडिश, बीटरूट. There are lots of vegetables which are grown in our country. Lots of fruits like apple, banana, guava, orange, grapes. These are several types of fruits. And the flowers like rose, jasmine, gladiolus, marigold, lakshpuram, balsam. These are the flowers which are grown in our country. Okay, students. So these are known as horticulture. And the next unit is unit 4, organic. Unit 4 is the organic farming and green revolution. Organic farming and green revolution. This is the unit 4. Students, what is organic farming? Actually, the method of farming that does not use of chemical fertilizer and chemical pesticides are known as organic farming. And instead of using the artificial chemical fertilizers and pesticides, farmers use the traditional method like crop rotation and the animal and the green manure. Farmers use green manure, animal dung, urine to make the soil more fertile. And they avoid the chemical pesticides also, and instead of the chemical pesticides they use the biological control of pest for removing the पेस्ट को रिमूव करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट का यूज करते हैं. और जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, इन टेक्निक्स का यूज करते हैं. सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स आर नोन एज ऑर्गेनिक क्रॉप्स. And in organic crops, in organic farming, the farmers usually they avoid the use of chemical fertilizers and chemical pesticides. This is known as organic farming. Now, what is the advantages of organic farming? The product obtained by the organic farming are free from the chemical fertilizer. क्योंकि chemical fertilizer, chemical pesticides का use नहीं करते हैं, इसलिए जो क्रॉप्स होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोड्यूस की जाती हैं वो कैसी होती हैं, फ्री फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑल्सो, बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर द मोर पॉइजनस टू द लिविंग थिंग्स. एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज द पॉल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर इज नॉट कॉज्ड, क्योंकि यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता है, इसलिए ये वाटर में पोल्यूशन नहीं कॉज होता है और लैंड में पोल्यूशन नहीं कॉज होता है, बिकॉज दे आर द मेन रीजन फॉर कॉजिंग द पोल्यूशन द लैंड एंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट द ऑर्गेनिक फूड्स आर मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि इनमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें कम क्वांटिटी में क्रॉप ग्रोन होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है.
and the shelf life is much shorter than the non organic food. non organic food की कंपैरिजन में जो उनकी लाइफ होती है उन क्रॉप्स की, उन फूड आइटम्स की, वो भी बहुत शॉर्ट होती है. तो दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड ग्रो इन लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में ग्रो होती है और इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है. दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ नेक्स्ट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स? Green Revolution. The world's first recorded food digester occurred in India in 1943. 1943 में जब देश आज़ाद नहीं था उस समय जो फूड डाइजेस्टर्स थी, बहुत ही बड़ा फूड डाइजेस्टर था, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. एक्चुअली व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग इन इंडिया द कैलेमिटी इज नोन एज द बंगाल फैमिली. ठीक है, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे उस समय एक ब्रिटिश, उस समय की ये ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था. एंड द कैलेमिटी इज नोन एज द ब्रिटिश बंगाल फैमिली एंड इट लेड टू द वाइपिंग आउट ऑफ अबाउट 4 मिलियन पीपल. उस समय कितने लोग वाइप आउट हुए थे? अबाउट 4 मिलियन पीपल. एंड एक साल में, ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जब ब्रिटिश ने इंडिया को लेफ्ट किया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देन द फर्स्ट एजेंडा और द मेन एजेंडा ऑफ द फ्री इंडिया इज टू फूड सिक्योरिटी. सबसे पहले उनका मेन एजेंडा क्या था? फूड सिक्योरिटी. एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन कैम इनटू बीइंग. और उसी समय ये ग्रीन, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, उस समय आई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला मेन एजेंडा उनका था कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको सबसे पहले सिक्योर किया जाए, फूड ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो किया जाए. ठीक है, देन उस समय पे हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी. द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ नोटेबल इंक्रीज इन सीरियल ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. और उस समय पे क्या वो नई जो टेक्नोलॉजी है उनको यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे जोर दिया जाने लगा. एंड यूजिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द इरिगेशन and use of chemical fertilizers in developing country in 1960s and 1970s. 1960s से और 70s के बीच में क्या ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, इरिगेशन की न्यू टेक्निक्स आ गई, केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स इन मोर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस ट्रेंड लेड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया. इससे इंडिया में क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा फॉर सप्लाइंग फूड्स ग्रेन्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री. और इसीलिए जो हमारी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन थी उनको प्रॉपरली फूड सप्लाई होने लगा. इट ऑल्सो इंकरेज द प्लानिंग ऑफ 2 राउंड्स ऑफ क्रॉप पर ईयर. इसमें उन्होंने प्लानिंग करी कि एक साल में 2 तरह की क्रॉप को रोटेट करके ग्रो कराया जाए, जिससे कि जो फील्ड है वो कभी वो उसमें क्या है उसको यूज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके. वन ड्यूरिंग द मानसून एंड वन ड्यूरिंग द इरिगेशन डिपेंडेंट. ओके, एक तो मानसून सीजन पे एक क्रॉप ग्रो कराएगा, दूसरी इरिगेशन टेक्निक्स पर डिपेंडेंट एक क्रॉप ग्रो कराएगी. सो वैरायटी ऑफ सीड्स दैट एंश्योर द बेटर क्रॉप्स दैट इज कम फ्रॉम द पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल. ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंटली ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पर ग्रोइंग कराना. पंजाब में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो कराई थी. वहाँ पर ये इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज और क्रॉप रोटेशन ये सब चीज़ें इन्वॉल्व की गई. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, ये उस समय पे क्या था वो इन स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ. Okay students, so this is known as green revolution. Now who is the father of green revolution? Actually the M.S. Swaminathan is known as the father of green revolution. इनको हम क्या कहते हैं? father of green revolution के नाम से जानते हैं. father of green revolution is M.S. Swaminathan. So students,
factors which have to led to green revolutions are the development and introduction of high yielding varieties. क्या features थे, क्या factors थे जिनकी वजह से green revolution start हो गया, मतलब start हुआ, और क्या क्या चीजें उसमें led हुई. That is development and introduction of high quality high yielding varieties, हाई yielding varieties को डेवलप किया गया. डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज, जो जल्दी से मैच्योर हो जाए, जल्दी से क्रॉप ग्रोन हो जाए, उन वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, उन वैरायटीज को डेवलप किया गया. मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, जैसा अभी मैंने बताया कि क्रॉप रोटेशन एक साल में दो दो तीन तीन क्रॉप्स को रोटेट करके उनको एक सीजन में दूसरी क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप्स, इस तरह से रोटेट करके वो ग्रो कराया गया. डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, जो ऐसे प्लांट्स को ग्रो कराया गया जिनमें कोई भी डिजीज कॉज ना हो. ओके स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज, जो ड्रॉट होने पर भी उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इस तरह की वैरायटीज़ को डेवलप किया गया. यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, और यहीं पर केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा. देन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉफ वैरायटीज विच डू नॉट फॉल डाउन. ठीक है, जो ड्रॉफ वैरायटीज होती हैं जो कि जल्दी से फॉल डाउन नहीं होती, उनका यूज़ होने लगा. So these are the factors which led to the green revolution. Okay students, now with this topic your unit 4 green revolution and organic farming are also completed. We will discuss the next unit, unit 5, in our next video. Thank you students.